السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ممبر محراب فاؤنڈیشن انڈیا کے زیر اہتمام ماہ اکتوبر کے فورٹ نائٹ 15 یومیہ خبر نامے میں آپ کا استقبال ہے۔ دین سے دور افراد کو نشانہ بنا کر انہیں دین سے قریب کرنا اور جوڑے رکھنا ممبر محراب فاؤنڈیشن کی تحریک کا مقصد ہے۔ مولانا غیاث احمد رشادی صاحب نے فکر مند اور درد مند بڑے اور چھوٹے علماء اکرام اور دانشمند طبقے کو لے کر ایک تحریک کا آغاز 1 سال قبل اس سلوگن کے ساتھ کیا تھا: چلو کچھ تدبیر کریں، کچھ کام کریں۔ الحمدللہ کرناٹک، تلنگانہ، تامل ناڈو، مہاراشٹر، مدھیہ پردیش، اتر پردیش، آسام، گجرات میں اس تحریک کا آغاز ہو چکا ہے۔ مولانا غیاث احمد رشادی، صدر صفا بیت المال انڈیا و ممبر محراب فاؤنڈیشن انڈیا، تحریک چلو کچھ تدبیر کریں، کچھ کام کریں کی فکروں کو لے کر ان دنوں ملک کے مختلف ریاستوں کے اسفار جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ان اسفار میں ملک کے علماء اکرام اور دانشوران سے ملاقاتیں اور ان احباب سے ادارہ ممبر و محراب فاؤنڈیشن انڈیا اور اس کی تحریک جدید کا تعارف کرانے کے ساتھ ساتھ اس تحریک کو ملک گیر سطح پر عام کرنے کے لیے فکر مند اور کاوشیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ چنانچہ انہی فکروں اور کوششوں کو لے کر جناب ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب، ڈائریکٹر شاہین ادارہ جات کی دعوت پر بروز چہارشنبہ 9 اکتوبر 2024 کو ضلع بیدر کرناٹک کا سفر فرمایا اور اس موقع پر شہر کے معزز شخصیات اور صاحب اثر و سروخ احباب کے درمیان خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ محلہ وار مساجد میں یا اطراف مساجد میں اسٹڈی ہال، لائبریری کا قیام نسل نو اور اسکولی طلباء کی تربیت کا ایک مؤثر ذریعہ ثابت ہوگا اور نتائج کے اعتبار سے بھی نہایت مفید ہوگا۔ علاوہ ازیں ممبر محراب فاؤنڈیشن انڈیا کے زیر اہتمام نونہالان قوم و ملت کی عصری تعلیم کی فکروں کو لے کر MMF گروپ آف اسکولز کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے، جس کے تحت گلشن ارشاد ماڈل اسکول کشن باغ حیدرآباد میں اور اسٹینلی اسکول گلبرگہ میں شروع ہو چکا ہے۔ گلوبل ایسوسی ایشن آف اسلامک اسکول ایک عالمی ادارہ ہے۔ اس ادارے نے مرضیہ ہوٹل میں 3 روزہ عالمی کانفرنس منعقد کی، جس میں 27 ملکوں کے اہم اور چنندہ شخصیات مدعو تھیں، جن میں مولانا غیاث احمد رشادی اور مفتی عبد المحیمن اظہر قاسمی بھی ہیں۔ مولانا نے ایک پینل ڈسکشن میں حصہ لیا۔ اس کانفرنس میں دنیا بھر کے ممالک میں قائم ایسے اسکولوں کے ذمہ داران تھے جن اسکولوں میں اسلامی نظام تعلیم ہے۔ یہ کانفرنس الحمدللہ کامیاب رہی۔ واضح ہو کہ ہر ریاست میں زونز قائم کیے گئے ہیں اور وہاں کے صدر و ترجمان حضرات اپنے مشن میں لگے ہوئے ہیں۔ ممبر محراب فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام جاری مراکز نسوان کا تعلیمی و تربیتی سلسلہ جاری ہے۔ ہر ماہ ان خواتین و طالبات کے درمیان امتحانات لیے جاتے ہیں۔ واضح ہو کہ شہر حیدرآباد اور دیگر اضلاع میں چلنے والے تمام مراکز نسواں کے حاضری کو سافٹ ویئر کے ذریعے آن لائن کر دیا گیا ہے۔ مرکز نسواں کا یہ سلسلہ شہر حیدرآباد کے علاوہ سورت، گجرات، گلبرگہ، چنچولی، چنداپور، عادل آباد، بھینسا، کریم نگر، کورٹلہ، نرمل، خانہ پور، اکل کوٹ، شولاپور، جالنہ، اورنگ آباد، بھوپال اور سہارنپور، کیرانہ، UP، آسام وغیرہ میں جاری ہے۔ مولانا غیاث احمد رشادی نے ہندوستان بھر کے علماء، ائمہ اور دردمند احباب سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں کے نوجوان لڑکیوں اور خواتین کو دین سے جوڑے رکھنے کے لیے مراکز نسواں قائم کریں، بالخصوص سلم علاقوں اور دیہاتوں میں مراکز نسواں کے قیام کا اہتمام کریں۔ ممبر و محراب فاؤنڈیشن انڈیا کے زیر اہتمام جاری بیسٹ کیریکٹر پروگرام کے ذریعے اسکولی طلباء و طالبات کی دینی، اخلاقی تربیت اور ذہن سازی کی جاتی ہے۔ اس کام کے لیے 10 علماء اکرام کی ایک ایسی ٹیم مقرر ہے جو انگلش سے بھی واقف ہے۔ وہ بچوں کی نفسیات کو بھی جانتے ہیں۔ یہ علماء اکرام روزانہ اسکولوں میں جا کر طلباء و طالبات کی ذہن سازی کرتے ہیں۔ ان میں سنجیدہ قسم کے بچوں کو بیسٹ کیریکٹر کے میڈلز دیے جاتے ہیں۔ واضح ہو کہ یہ کام مستقل طور پر حیدرآباد کے 200 اسکولوں میں کیا جا رہا ہے۔ حالیہ دنوں میں مربی حضرات کی اس ٹیم کے ذریعے دسہرہ کی تعطیلات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گلیوں میں کھیل کود میں مصروف بچوں سے گلیوں کی کلیوں کے تحت بچوں سے ملاقاتیں اور ان سے دینی سوالات کیے گئے اور درست جوابات دینے والے بچوں کو گفٹ اور انعامات کے ذریعے تشجیع اور حوصلہ افزائی کی گئی۔ اسی طرح تلنگانہ، کرناٹک، مہاراشٹر، بھوپال، مدھیہ پردیش اور کیرانہ، UP وغیرہ کے مختلف علاقوں میں چل رہے اسکولوں میں بھی یہ کام جاری ہے۔
मिंबर मेहराब फाउंडेशन इंडिया के मुंतखब करदा तर्जुमान हजरात मुल्क के 8 रियासतों में जमीनी सतह पर काम कर रहे हैं, जिसमें नुक्कड़ों, चौराहों, चबूतरों और होटलों के पास वक्त गुजारने वाले मुसलमान और दिगर नौजवान अफराद से मुलाकात करते हुए इनकी परेशानियों को सुनते हैं, इनके हल बताने के साथ साथ इनको दीन से जुड़े रहने की तरगीब देते हैं, नमाज पढ़ने की नसीहत करते हैं। इसी तरह मिंबर मेहराब फाउंडेशन के तर्जुमान व मुबल्लिग अहबाब मुलाकातों का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। मिंबर मेहराब फाउंडेशन ने मुल्क के 10,000 आइमा मसाजिद का डेटा तैयार रखा है। मुल्क के बदलते हालात में सुलगते मौज़ूआत पर हर जुमा के लिए इन 10,000 आइमा तक हर चारशुम्बा बजरिए व्हाट्सएप बयानात इरसाल करता है, ताकि जुमा और ईदैन के मौके पर वो इन मौज़ूआत पर बयानात कर सकें और मिल्लत की रहबरी कर सकें। अब तक 364 खतबात इरसाल किए गए हैं। 11 अक्टूबर को शोलापुर, अक्कलकोट, गुलबर्गा, कल्याणी, सेडम और भोपाल से उलमा और नौजवानों का वफ्द मरकजी दफ्तर मिंबर मेहराब फाउंडेशन पर हाजिर हुआ। मौलाना गयास अहमद रशादी और मौलाना नजीर अहमद रशादी तरबियती खिताब किया और मुख्तलिफ इलाकों के अहवाल से वाकिफियत हासिल की और जमीय शुरका से मरकजी सदर ने फर्दन फर्दन मुलाकात की। तेलंगाना जोन की तफसीलात। मौलाना सैयद रिजवान असदी तर्जुमान मिंबर मेहराब फाउंडेशन तेलंगाना तहरीक के फिक्रों को लेकर तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में असफार जारी रखे हुए हैं। चुनाचे गुज़िश्ता 15 दिनों में जिले निजामाबाद, जिले निर्मल, लक्षटीपेट, जिले मंचरियाल, खानापुर, जिले निर्मल, बीर साईपेट, दंतनपल्ली, गढ़ी हथनूर और पंबी वगैरह का दौरा किया गया। तमाम मुकामात पर उलमा, दानिश्वर और दर्दमंद अहबाब से मुलाकातें की गई। नेज़ मुतादिद मुकामात पर मजलिस से मशावरात कायम की गई और निर्मल, निजामाबाद, आदिलाबाद वगैरह मुकामात पर दावत उमूमी के लिए जुज़ वक्ती मुबल्लिगीन के तकर्रुर के सिलसिले में गौर फिक्र किया गया। इन्हीं असफार के दौरान निजामाबाद में 2 और लक्षटीपेट जिले मंचरियाल में 1 और नए मरकज निस्वान का क़याम अमल में आया। अलावाजी मुतादिद मकामात जुमात के मौके पर खिताबात और इन खिताबात में तहरीक और इसकी खिदमात का तारुफ कराया गया। मौलाना हैदर असदी नुमाइंदा मिंबर मेहराब फाउंडेशन जिला करीमनगर शहर के मुतादिद स्कूलों के तलबा व तालिबात से खिताब कर रहे हैं। उम्मीद मुलाकातों के जरिए नौजवान व दिगर अफराद की दीनी जहन साजी कर रहे हैं। मिंबर मेहराब फाउंडेशन इंडिया और मजलिस इल्मिया आंध्रा व तेलंगाना के मुकर्रर मुबल्लिग नलगुंडा के मुख्तलिफ मंडल्स और देहात पालवाई, कलवापल्ली, मिरियालगुड़ा, चिंतापल्ली, पेद्दाराव मंडल, कोंडापल्ली वगैरह देहातों में मिंबर मेहराब फाउंडेशन इंडिया की इस तहरीक के मुख्तलिफ खिदमात जारी रखे हुए हैं। कर्नाटक जोन की तफसीलात। तर्जुमान कर्नाटक मौलाना नजीर अहमद रशादी की निगरानी में मुख्तलिफ खिदमात जारी रखे हुए हैं। रियासत कर्नाटक के तर्जुमान हजरात ने शहर बीदर और गुलबर्गा अजला और इसके ताल्लुकात का दौरा करते हुए मिंबर मेहराब फाउंडेशन के ज़ेर निगरानी जारी मरकज़ निस्वां के जायजे के साथ उन्हें दरपेश मसाइल की रहबरी और रहनुमाई और तहरीक के दिगर मुतादिद उमूर का जायजा लिया गया। मसलन मराकिज़ निस्वां के सेमाई इम्तिहानात और मकातिब दीनिया के दौरे और इनका तालीमी जायजा लिया गया। मिंबर मेहराब फाउंडेशन और तहरीक से नावाकिफ जदीद आइम्मा व उलमा व हुफ़ाज़ से 15 नुकाती तारुफी मुलाकात की गई और अपने घर को अल्लाह के घर से जोड़ो मुहिम के तहत आइम्मा इकराम के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए और बड़ी उम्र के ख़वातीन के लिए दीनी शऊर, बेदारी और तालीम की फिक्र दिलाई गई। इसका आसान हल बताते हुए मरकज़ निस्वां के आगाज का हल पेश किया गया। मुतादिद उलमा ने इस फिक्र को सराहा और जल्द से जल्द आगाज का तयक़ीन दिया और इस काम के लिए शहर हैदराबाद में जारी मुनज़्ज़म और कामयाब मरकज़ निस्वां के दौरा और जायजे की तरगीब दी गई, जिसके ज़िम्मन में ताल्लुक़ा सेडम, अहमदाबाद, बसवा कल्याण, बीदर और गुलबर्गा से बतारीख 12 अक्टूबर को मरकजी दफ्तर के तमाम शोबाजात और मरकज़ निस्वां के दौरे के लिए 15 अफराद पर मुश्तमिल उलमा का एक वफ्द मरकजी दफ्तर मिंबर मेहराब फाउंडेशन इंडिया हैदराबाद आया। रियासत महाराष्ट्र की तफसीलात। मिंबर मेहराब फाउंडेशन और औरंगाबाद जोन के तहत कारी मोहम्मद मुस्तफ़ा मिफ्ताही और मौलाना अनीसुर रहमान नदवी साहब की निगरानी में तहरीक की खिदमात जारी रखे हुए हैं। चुनाचे इन 15 दिनों में तहरीक का तारुफ, मरकज़ निस्वां का क़याम, बेदीन अफराद से मुलाकात, बेस्ट कैरेक्टर प्रोग्राम के जरिए स्कूली तलबा व तालिबात की तरबियत, जुमा के मौके पर मुख्तलिफ मसाजिद में खिताबात और अपने घर को अल्लाह के घर से जोड़ो मुहिम के तहत व्हाट्सएप ग्रुप का मुनज़्ज़म निज़ाम पर काम जारी है, जिसके काफ़ी अच्छे असरात मुरत्तिब हो रहे हैं।
इन काविशों और फिक्रों के नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह मिंबर और मेहराब फाउंडेशन इंडिया की ये तहरीक तेजी से महाराष्ट्र में अपना दायरा वसी कर रही है। रियासत उत्तर प्रदेश की तफसीलात। मौलाना मोहम्मद खलील बदरी तर्जुमान उत्तर प्रदेश, मौलाना महफूजुर रहमान रशीदी सदर उत्तर प्रदेश की निगरानी में तहरीक के खिदमत जारी रखे हुए है। दीनी दोस्ती के तहत अवामी दावत स्कूली तलबा में बेस्ट कैरेक्टर और खवातीन के लिए मरकज निस्वान कायम किए गए हैं। नेज मौलाना महफूजुर रहमान रशीदी साहब मुख्तलिफ मकामात पर सीरत के जलसों में शिरकत करते हुए तहरीक, बानी तहरीक और खिदमत तहरीक का तारुफ करा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में तहरीक मुस्तहकम करने के सिलसिले में फिक्रमंद व कोशियां हैं। मध्य प्रदेश जोन की तफसीलात। मुफ्ती मोहम्मद जुनैद कासमी तर्जुमान मध्य प्रदेश शहर भोपाल में तहरीक की खिदमत को जारी रखे हुए हैं। इन 15 दिनों में खुसूसियत के साथ बेस्ट कैरेक्टर प्रोग्राम के सिलसिले में स्कूलों में मुलाकातें हुई। अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर स्कूलों की तरफ से मुस्बत पहलू सामने आया और अक्सर प्रिंसिपल हजरात ने अपने अपने स्कूलों में प्रोग्राम का आगाज करने का वादा किया। उलमाए किराम और आइम्मा इज़्ज़ाम और कुछ फिक्रमंद नौजवानों से भी मुलाकातें हुई। मौलाना आसिफ अली जूफी और एडवोकेट जनाब मेराज साहब से खास मुलाकात हुई। इन हजरात को तहरीक का तारुफ कराया गया, सदर मोहतरम की शख्सियत के बारे में बताया गया और उमूर तहरीक पर मावनत की दरख्वास्त करते हुए मिंबर और मेहराब फाउंडेशन के ग्रुप में शामिल किया गया। दीनी इस्लाही तरबियती मुलाकातें भी अच्छी रहीं। कुछ ऐसी गलियों की कलियों से मुलाकातें हुई जो कम उम्र में दीनी व असरी तालीम से दूर होकर काम काज के अंदर लगे हुए हैं। इनको तालीम का शौक दिलाया गया। मौजूदा दौर में दीनी और असरी तालीम की अहमियत इन बच्चों के दिलों में बिठाने की पूरी कोशिश की। जिनकी ईमानी और दीनी हालत इंतहाई कमजोर है, वो गोया इर्तिदाद के दहाने पर है। तमिलनाडु की तफसीलात। मौलाना नूरुल्लाह अहयाई तर्जुमान तमिलनाडु मौलाना मोहम्मद तलहा मदनी साहब की निगरानी में खिदमत जारी रखे हुए हैं। चुनाचे इन 15 दिनों में मदारिस के तलबा को मैदानी काम करने का तरीका समझाया गया। नुक्ता नंबर 15, तंजीमों के इश्तिराक के साथ दीनी व मिली खिदमत के तहत जमीयत उलमा के मशावरती इजलास में शिरकत की गई और इलाके के मुशाहिर उलमा से मुलाकात करते हुए तहरीक का तारुफ और इसकी खिदमत से मुतारिफ कराया गया। रियासत आसाम की तफसीलात। मुफ्ती अहमद अली कासमी साहब की निगरानी में रियासत आसाम में मिंबर और मेहराब फाउंडेशन इंडिया की इस तहरीक का आगाज हो चुका है और रियासत आसाम में अब तक मुख्तलिफ मकामात पर 19 मराकिज निस्वां के सेंटर कायम हो चुके हैं और मुफ्ती अहमद अली कासमी साहब की निगरानी में तालीमी और तरबियती सिलसिला जारी है। अलावाजी सफा बैतुल माल इंडिया और मिंबर और मेहराब फाउंडेशन इंडिया के ज़ेर एहतमाम मौलाना गयास अहमद रशादी साहब की निगरानी में मुल्क की पिछड़ी रियासतें आसाम, बंगाल वगैरह में मसाजिद की तामीर और बोरवेल की तनसीब का भी सिलसिला जारी है। नाज़रीन गिरामी, मिंबर और मेहराब फाउंडेशन की यह खिदमत अहले खैर हजरात के भरपूर ताउन से पूरी की जाती हैं। आप तमाम नाज़रीन व सामीन से दरख्वास्त है कि इस मुहिम में अपना भरपूर ताउन फरमाएं। QR कोड UPI नंबर से आप ताउन कर सकते हैं। अगर इस मुहिम को करीब से जानना चाहते हैं तो मिंबर और मेहराब के दफ्तर तशरीफ लाकर इस मुहिम को करीब से जान सकते हैं। मजीद तफसीलात के लिए इस नंबर पर रब्त पैदा करें 9989666811। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।